Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will cover the last part of our topic for this week, business management, and it's time to move on to the last managerial function, that is controlling. And if you have any queries, drop them in the comment box. Just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So students, the last managerial function is controlling, and with this we will cover our one topic 1 week series today. So last week Wednesday को when I started this series, all I wanted was to fasten the pace of covering your syllabus, and I hope students आप साथ ही साथ में short notes भी बना रहे होंगे so that they may be helpful in revision. But one more thing I want to add is that revision purpose के लिए I will provide separate videos with more concise content, और मैं ये भी बताऊँगी कि अपने videos के थ्रू that मैं revision किस तरह करती हूँ when I have last few days to exam. So moving towards the topic, controlling. So controlling is a process of comparing the actual performance with the set standards of the company. So जो performance standards already set किए जा चुके होते हैं उनके साथ actual performance को compare करना, और जो other part है controlling process का, एक part तो ये है comparison, the other part is to notice if any deviation is there, और उसको deviations को जो है correct करने के लिए to take the corrective actions. So ये controlling का process जो है किस तरह कंप्लीट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजर ही कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स, एंड ऑल्सो ही टेक्स करेक्टिव एक्शंस इफ एनी रिक्वायर्ड. So every manager needs to monitor and evaluate the activities of his subordinates. It helps in taking corrective action by the manager in the given timeline to avoid contingency or company's loss. So एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल एम्स हमेशा सेट किए जाते हैं, अगर उनको जो है अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं, अगर वो विद इन दी गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो दिस विल लीड टू कंटिजेंसी, एंड ऑल्सो अगर कोई डेविएशंस हैं तो वो जो है कंपनी को लॉस होता है उनकी वजह से. सो पहले तो डेविएशंस की वजह से जो लॉस होगा वो तो है ही, और जो डेविएशंस को करेक्ट करने में रिसोर्सेज जो है यूज़ होती हैं वो भी जो है वेस्ट ही होती हैं. तो जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, उतना ही कंपनी का लॉस होगा. सो डेविएशंस ऑलवेज लीड टू लॉसेज. सो अगर डेविएशंस नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो कंपनी के लॉसेस भी नहीं होंगे इस तरह के, और कोई कंटिजेंसी इस तरह की कोई सिचुएशन भी अराइज नहीं होगी. सो एवरी मैनेजर ही मस्ट मॉनिटर एंड evaluate his activities of the subordinates. So he must, any deviation is taking place, so he can correct them. So controlling is performed at the lower, middle or upper levels of management. So हर लेवल सो कंट्रोलिंग हर एक लेवल पर जो है एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सब पे ही होती है. सो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग इज़ द नेक्स्ट पार्ट. So let's see. The first one here is it helps in achieving the organizational goals. So controlling helps in achieving the business objectives, as controlling is an important function for every manager. It helps to ensure the regular supply of factors of production and high quality of goods and services at economical cost. So this is how it helps in achieving business objectives of profit through high quality goods and services. So अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गुड्स या सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं वो हाई क्वालिटी के हों और उन्हें टाइमली जो है वो मार्केट में अवेलेबल कराते हों, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा, और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं कंट्रोलिंग के थ्रू वो अचीव किए जा सकते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रोथ के चांसेस भी, प्रॉफिट के जितना अर्न करेगी उतना ही ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं. सो इसलिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी जो है कंपनी का होस्ट किया जा सकता है. वो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कंट्रोलिंग के ही थ्रू. नेक्स्ट कम्स इट फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैंने अभी कहा जितनी डेविएशंस होंगी उतनी जो है रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी. तो जितनी रिसोर्सेज जो है डेविएशंस को करेक्ट करने में लगाएंगे, या डेविएशंस की वजह से जितनी रिसोर्सेज वेस्ट हुई होंगी, वो सारी रिसोर्सेज जो है अगर इस तरह से वेस्ट ही ना हो, तो दिस विल लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दस कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट कम्स it evaluates the accuracy of standards.
एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है एवेल्यूएट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस। सो अगर ऐसा कोई चेंज जो है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पहले सेट किए जाते हैं, तो अगर उसके बाद ऐसा कोई इन्वायरमेंटल चेंज अकर हो रहा है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स को इम्प्रोवाइज या करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ये जो है ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें टाइम टू टाइम जो है जज किया जाए इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करके सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं। अगर वही गलत होंगे तो सारा जो एफर्ट है वो सारी चीज़ें इट विल बी लीडेड इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। जो जबकि स्टैंडर्ड्स अगर आपके सही होंगे तो सारी एक्टिविटीज़ भी सही तरह से एग्जीक्यूट होंगी। सो इसलिए स्टैंडर्ड्स को हमेशा इवेल्यूएट करते रहना ज़रूरी है, और ये कौन करता है? मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इट ऑल्सो सेट्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। सो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस पे। तो ये कंट्रोलिंग के थ्रू कैसे पॉसिबल है? बिकॉज कंट्रोलिंग इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूअस चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड दिस क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें स्मूथली रन किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। सो एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? उन्हें अगर क्लियर कट जो है उनकी टास्क जो है वो बता दिए जाएँ, और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उनको अचीव करना है वो उन्हें क्लियर कट समझा दिया जाए, तो ये क्या होता है? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी एम्प्लॉय को, कोई केओस किसी तरह का नहीं क्रिएट होगा। उसे पता होगा कि उसे क्या काम करना है और किस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके देना है। तो दिस ऑल इफ़ेक्ट्स पॉजिटिवली ऑन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, और इसकी वजह से ही फील्स मोटिवेटेड वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। सो इसलिए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कैसे पॉसिबल है? कंट्रोलिंग के थ्रू। So next comes ensures future planning by revising standards. So through controlling the manager keeps on revising the standards, और इसी तरह से उसे ये पता चलता रहता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अब भी बाकी हैं कैरी आउट करने के लिए, या फिर ऐसी चीज़ें जो अभी तक हुई भी हैं उसमें अगर कोई डेविएशन है तो उसमें फर्दर हम क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये सारी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है ये भी कंट्रोलिंग के थ्रू कौन एग्जीक्यूट करता है? मैनेजर। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? ओनली थ्रू कंट्रोलिंग। नेक्स्ट कम्स improves overall performance of an organization. So as control is the only means to ensure that the plans are being implemented effectively. So it brings out the shortcomings of planning, organizing, staffing, directing. जितनी भी ये जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ से पहले परफॉर्म हुई हैं उनमें अगर कोई जो है छोटी सी भी शॉर्टकमिंग है, कोई ऐसी जो है प्रॉब्लम है वहाँ पर, सो उसे किस तरह से पॉइंट आउट किया जा सकता है? ओनली थ्रू कंट्रोलिंग। एंड यही एक प्रोसेस ऐसा होता है दैट इंश्योर्स दैट ऑल द प्लान्स विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। इसलिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इन्हांस की जा सकती by completing the task in the given timeline. So इससे जो है overall performance organization की enhance होती है. Next comes it also minimizes errors. So errors किस तरह से कम किए जा सकते हैं? Because जो manager है he is having a constant watch over his subordinates. This will ensure that the subordinates perform the task assigned to them more attentively, और इसकी वजह से जो employees हैं they will be more flawless in their activities, और इसकी वजह से errors जो हैं उनके चांसेस और कम हो जाते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं, फीचर्स है कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सो देयर आर 4 स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन here is establishment of standards, second is measurement of actual performances, third is comparison of actual performance with the standards, and the last one corrective actions only if necessary. सो थर्ड स्टेप में अगर ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कोई ऐसा डेविएशन नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ। सो लेट्स डिस्कस दीज स्टेप्स इन डिटेल. First one here is establishing standards. So this means setting up of the target which needs to be achieved to meet the organizational goals eventually. So establishing targets, standards क्यों है ज़रूरी? क्योंकि दिस मीन्स सेटिंग अप ऑफ द टारगेट्स विच नीड्स टू बी अचीव टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इवेंचुअली. मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स और बाकी के सारे एम्प्लॉयज़ कैरी आउट कर रहे हैं, वो क्यों कैरी आउट कर रहे होते हैं? टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इवेंचुअली, और इसीलिए जो टारगेट्स हैं वो सेट किए जाते हैं और सबको उनके टारगेट्स असाइन कर दिए जाते हैं, और यही जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स है. सो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस. सो कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर
categorized as quantitative and qualitative. So quantitative standards क्या होते हैं? These are expressed in terms of money. जैसे कि अगर ये कहा जाए कि इस तरह से कंपनी को इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस साल होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव हो गया. क्वालिटेटिव क्या हो गया? ऑन दी अदर हैंड दिस इंक्लूड्स इंटेंजिबल आइटम्स, यानी कि कंपनी अगर ये कहे कि हमें हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर्स चाहिए, तो ये क्या है? इंटेंजिबल है ना, कस्टमर की हैप्पीनेस और बाकी की चीज़ें जो भी इस तरह की जो एफिशिएंसी और उसके लिए अपने जो कंट्रोल के लिए या वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल बेटरमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड अगर सेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्वालिटेटिव हो जाएंगी. नेक्स्ट कम्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज मेजर्ड अगेंस्ट द टारगेट विद द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. The measurement of performance becomes difficult. So actual performance of employees is always measured against the target. यही है हमेशा से कंट्रोलिंग का कंसेप्ट कि जो भी टारगेट होता है उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमेशा कंपेयर किया जाता है. और अगर सो द सेकेंड स्टेप हियर बिकम्स दी कंपैरिजन. सो हमेशा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको मेज़र किया जाता है, और उनको मेज़र करने का क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है सेट किए गए होते हैं, उनसे उन्हें कंपेयर किया जाता है. दिस इज़ हाउ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ डन. एंड एज इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स डिफिकल्ट. सो अगर जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे मैनेजमेंट में, उतने ही ज़्यादा परफॉर्मेंस को जो है मेजर करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है. सो एंड वाइस वर्सा भी देख सकते हैं आप, जितने ही लेवल्स कम होंगे उतना ही मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आसान होगा. सो नेक्स्ट द थर्ड स्टेप कम्स एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स. सो इस स्टेप में क्या होता है, हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड्स जो है उन्हें जो फॉर्मुलेट किया था उन्हें देख लिया, मेजरमेंट देख लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस का. नाउ दी एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बीइंग कंपेयर्ड विद दी स्टैंडर्ड्स. सो ये बनता है आपका थर्ड स्टेप. सो स्टेप में क्या होता है, दिस कंपेयर्स द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड, दस इट रिव्यूज डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड. सो अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई जो है डिफरेंस है, एंड डिग्री ऑफ डिफरेंसेस देयर, सो वहाँ पे जो है उनको क्या बोलते हैं, हम डेविएशंस बोलते हैं. और यही यहाँ ये स्टेप है जहाँ पे डेविएशंस रिवील होते हैं. और अगर नहीं है कोई डेविएशन तो फोर्थ स्टेप को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. बट अगर डेविएशंस हैं तो नेक्स्ट स्टेप बिकम्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. सो इसमें क्या होता है, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द मैनेजर हु करेक्ट्स एनी डिफेक्ट्स इन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड दिस में इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्निशन ऑफ ड्यूटीज़, क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. और करेक्टिव एक्शंस जो हैं उन डेविएशंस को कर्ब करने के लिए या करेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इससे मैनेजर जो है ही इनिशिएट्स दिस स्टेप एंड ही करेक्ट्स एनी डिफेक्ट्स इन एक्चुअल परफॉर्मेंस. और ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए टूल्स क्या होते हैं इस तरह की जो करेक्टिव एक्शंस हैं उनको लेने के लिए, तो ही कैन मॉडिफाई द प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स, ही कैन रिकॉग्नाइज द ड्यूटीज़ एक्सेट्रा, एंड ही कैन ऑल्सो क्लैरिफाई द स्टैंडर्ड्स. कई बार ऐसा होता है स्टैंडर्ड्स अगर क्लियरली जो है एम्प्लॉय समझेगा ही नहीं, तो ही माइट नॉट परफॉर्म एज पर द स्टैंडर्ड्स. सो इसलिए क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरी है, जो अगर नहीं हुआ था पहले तो मैनेजर अब उसे करके करेक्ट कर सकता. सो कंट्रोलिंग प्रोसेस thus regulates companies' activity so that actual performance conforms to the standard plan. An effective control system enables managers to avoid circumstances which cause the company's loss. So अगर किसी भी तरह की डेविएशन होगी तो वो कंपनी के लॉस में ही जो है हमेशा कंपनी को लॉस होता है उसकी वजह से, डेविएशन की वजह से. तो ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से कंपनी को लॉस हो, मैनेजर मस्ट अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस, सच कंडीशंस. सो इसलिए वो क्या करे, ही कैन एग्जीक्यूट द कंट्रोलिंग प्रोसेस इफेक्टिवली. और वो कंट्रोलिंग के थ्रू क्या कर सकता है, ही कैन रेगुलेट द एक्टिविटीज़ एंड सो दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू द स्टैंडर्ड प्लान. सो जितनी जो स्टैंडर्ड प्लान होंगे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होंगी, उनके थ्रू अगर हम चेक करें और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उससे सेम हो, तो फिर इस तरह से कंपनी के जो लॉसेज वाली बात है ये तो होगी ही नहीं, फिर वहाँ डेविएशंस ही नहीं होंगे, तो कोई किसी तरह का लॉस भी नहीं होगा. तो इसलिए मैनेजर मस्ट बी अटेंटिव रिगार्डिंग टू द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस. So let's move ahead to types of control. The first one is feedback control. This process involves collecting information about the finished task, assessing that information and improvising the same type of task in the future. So feedback control के through क्या होता है, it involves collecting information about a finished task. जब एक task
पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसे फिनिश कर लिया गया है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन को फिर फर्दर जो है असेस किया जाता है और इम्प्रोवाइज़ किया जाता है, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में सेम तरह की कोई टास्क जो है एग्जीक्यूट करनी हो तो वो जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो टास्क अभी अभी फिनिश की गई है उससे ही जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उस टास्क को जो फ्यूचर में उन्हें उसी तरह की टास्क एग्जीक्यूट करनी है उसे वो बेटर वे में कर सकें। नेक्स्ट कम्स कॉन्करेंट कंट्रोल. It is also called real-time control. So another name for concurrent control is what? Real-time control. So it checks any problem and examines it to take action before any loss is incurred. So control chart को आप एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं concurrent control जो होता है उसके लिए। इसमें क्या होता है, इट चेक्स एनी प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिन्स इट टू टेक एक्शन बिफोर एनी लॉसेस इनकर्ड. सो कि जो मैनेजर है थ्रू कॉन्करेंट कंट्रोल ही चेक्स ऑन for any kind of problem, he examines them and he takes action before any loss is incurred. So इसके थ्रू जो है losses हैं वो उनके इनकर होने से पहले ही जो करेक्टिव एक्शंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके जो losses हैं जो डेविएशंस हैं उन्हें कर्व कर लिया जाता है. नेक्स्ट कम्स दी प्रिडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू फोरसी प्रॉब्लम अहेड ऑफ अकरेंस, देयरफॉर एक्शन कैन बी टेकन बिफोर सच सर्कमस्टांसेस अराइज. इसमें जो है क्लियरली ये मेंशन है, देखिए कि दिस हेल्प्स टू फोरसी प्रॉब्लम्स अहेड ऑफ अकरेंस, यानी जो चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे बिजनेस फोरकास्टिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर्स देखते ही रहते हैं. सो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी कोई ऐसा सर्कमस्टांस अराइज हो सकता है जिसकी वजह से कोई किसी तरह का लॉस हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, दे फोरसी सच प्रॉब्लम्स एंड वो पहले से ही इस तरह से एक्शन लेते हैं कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस अराइज ही ना हो. ठीक है. नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी. हाउ, अगर कोई डेविएशन बाद में हमें पता चले एकदम लास्ट में जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, जब सारा टास्क फिनिश हो चुका है, तो क्या होगा, वो सारा टाइम, वो सारी एनर्जी, वो सारी रिसोर्सेज वेस्ट चली जाएंगी. तो अगर हमें ये जो है डेविएशन को पूरी तरह से अवॉइड करना है तो हमें कंट्रोलिंग को हमेशा एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए. नेक्स्ट कम्स अलाउज मैनेजर टू कंसनट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क. This allows better utilization of managerial resources. So controlling this allows managers to concentrate on other important tasks as well, and this allows better utilization of managerial resources. So अगर मैनेजर जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस को ठीक तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है तो ही मस्ट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क. ही कैन ऑल्सो make better use of the managerial resources that have been assigned to him. So next comes, it helps in timely corrective action to be taken by the managers. So corrective actions को timely execute कर सके तो जिस भी तरह का loss अगर incur होने वाला होगा तो वो उसके impact को minimize कर पाएगा. So this helps in timely corrective action. So अगर corrective actions timely लिए जाएँ तो वो बहुत ही जो है effective हो सकते हैं, और इसलिए controlling यहाँ पे important है, that this helps in timely corrective actions to be taken by the manager. Next comes, managers can delegate tasks, so routine course can be completed by subordinates. और controlling के through what he can do, he can So another advantage of controlling is what? Managers can delegate tasks, so the routine course can be completed by the subordinates. So जो daily task हैं वो जो है subordinates उन्हें देख सकते हैं, और managers अगर इस तरह से अपनी task को delegate कर सके तो he can also the managers can also on the other important errands as well. So this is all for today. Hope the topic is clear to you all, and with this we have completed business management. Next week we will take accountancy as our topic for the one topic 1 week series, and you can convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box, and stay tuned to my channel. अगर आपको BHU BCom entrance या other entrances से related किसी topic में कोई confusion है तो you can mention that in the comment box. I will include them as well. So stay home, stay safe, happy learning.